रिकॉर्ड। यस, चलो अब भी बताया पूर्वेश, क्या फायदा, मैंने ऑलरेडी चालू किया अभी। चलो, anyway, so we started discussing about the gland. Salivary gland is the first gland which we discussed, that is present in the mouth, and there are three different types of glands. One is the parotid, the other one is submandibular, and the other one is sublingual. Fantastic. So parotid gland, sublingual gland, and submandibular. Parotid, which is present near the ear, submandibular is present below the mandible bone, and sublingual is present below the tongue. So these are the three glands present on one side, three glands present on the other side. So we have three pairs of gland. They are the lobulated gland, and each gland is going to secrete, each lobe is going to secrete the saliva. So they will have a specialized cells which will mucus secreting cells जैसे ही होते हैं, but they are going to secrete saliva which will have a chemical substance called as mucin, which makes it little slimy. Now each gland will open in the mouth cavity through a duct. Now it is important, yes, serous cells, correct. Now what are these ducts? तो सबसे पहला जो आता है, that is parotid gland. So what is the duct of parotid gland called as? Duct of parotid gland is called as the Stenson's duct. Very good, fantastic. So it is known as the Stenson's duct. Submandibular gland का duct, submandibular gland is का duct is known as submandibular. It is duct of Rivinus, correct? Yeah, correct. And then we have the sublingual, which is, as Shraddha has rightly said, it's going to be Wharton's duct. Correct. Right. So it is called as the Wharton's duct. So these are the three important ducts. Can you please again say the location of these three glands? See, पहला gland रहता है parotid gland. Listen to me. Aman is asking the location of the three glands. So first gland is present here near the ear. So that is called as the parotid gland. One gland is present below the mandible bone. So it is called as submandibular gland. One gland is present below the tongue. So it is called as sublingual gland. So parotid, submandibular, and sublingual. Sub meaning below, mandibular meaning mandible. Sublingual, lingua meaning tongue, sub meaning below, so below the tongue. Purvesh is asking about the videos on YouTube. I have already given this work to the Mumbai admin, and they will be doing the needful. जैसे ही एक दो दिन में हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा, I will send you the link, or somebody will send you the link on the group, then you will be able to see that. Okay, चलो, good. So duct of Ravenous is for what? चलो फिर से एक बार ducts देख लेते हैं. No, I am not sharing the screen right now. पहला पहला आता है, that is first is, बोलो, first one is parotid. Parotid का duct कौन सा है? Stensons. उसके बाद सब mandibular, सब mandibular, सब lingual नहीं, सब mandibular का duct कौन सा है? बोलो 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 जल्दी. सब मैंडिबुलर का सब कंफ्यूज क्यों है? सब मैंडिबुलर इज रेविनस ना, डक्ट ऑफ रेविनस, राइट. एंड सब लिंगुअल इज वॉर्टन्स डक्ट. बरोबर. कि सब मैंडिबुलर उल्टा हो गया. सब मैंडिबुलर इज डक्ट ऑफ, or rather submandibular is Walton's duct, and sublingual is duct of Ravenous. Very good. Chalo, nice. So submandibular Walton's duct, sublingual duct of Ravenous. ठीक है? Thank you, Aman. So these are the three ducts which we have, and these three glands which are going to pour their secretions into the mouth, where they are going to secrete saliva. Saliva will have both the enzymes as well as the mucin. Mucin will make sure that the food will be made moist and soft, and the enzymes which are present in the saliva will help in the initial digestion of the food. Now the food will enter into the esophagus. From esophagus it goes to the stomach, और स्टमक के अंदर रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड. लेकिन अभी तक हम लोगों ने आई गेस गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा नहीं है. सो वी डिस्कस्ड अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट्स कॉल्ड एज द लीवर. ओके, सो लीवर के बारे में हम लोगों ने काफी सारा बड़ा डिस्कशन किया था. द ग्लैंड इज स्टिल नॉट येट कंप्लीट. So I'm going to share this particular PPT again with you all, so that you will be able to see. I hope my screen is visible to everyone. Okay, chalo, good. So now this is so this is what we studied as the you can say the liver, and the histology of the liver. Okay, good. Chalo. So this is considered as the largest
exocrine gland. There is something called as endocrine and exocrine. So it is considered as the largest exocrine gland, having two lobes, anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe has a tendency to regenerate. या करता हूं मैं, वही चल रहा है अभी, ठीक है. So it has the capacity to regenerate. Okay, so it can regenerate itself. Now, uh, uh, further, if you enter, it is brownish, reddish brown in color, and approximate weight of this is 1.5 kg in adults. Okay. Difference between Sephora, difference between exocrine and endocrine is this, that exocrine gland will secrete enzymes and endocrine gland will secrete hormones. Now, hormones are directly released in the blood. Therefore, we call that as ductless gland. Whereas enzymes will not be released in the blood, so they're released in the ducts. Therefore, these are called as the glands with the duct. तो जो एंजाइम वाला ग्लैंड होता है वो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन में काम में आएगा, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हार्मोन वाला ग्लैंड होता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम में आएगा. ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. आई होप somebody had asked. Yes, सफोरा ने पूछा था. सफोरा समझा मैंने क्या बताया अभी आपको? यस. ओके, चलो. दिस इज एंटीरियर लोब. आगे का जो लोब होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर लोब, एंड दिस वन इज नोन एज द पोस्टीरियर लोब. तो लोब का नाम है एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. सिंपल. ठीक है. Yes, covered from outside by the Gleason's capsule. GLISSONS. Yeah. Posterior and anterior lobe. अच्छा, अभी अंदर जाओगे ना तो we have hepatic lobules. Okay, इसके अंदर रहता है hepatic lobule. तो ये पूरा lobule है, ये बड़ा सा, और यहाँ पे जो बीच में जो ब्लैक कलर का हेक्सागोनल मैंने निकाला ना, that is known as the hepatic lobe. Okay, it is called as the hepatic lobe. Right? अच्छा, अभी दिस इज नोन एज द हिपैटिक लोब, और उसके एंगल पे यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, दिस वन, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला है, दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल कैनाल. इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल कैनाल. अभी एग्जैक्टली इन द सेंटर वी आर गोइंग टू हैव दिस सेंट्रल कैनाल, एंड सेंट्रल कैनाल कैरीज द हिपैटिक वेन. ओके, सो इट्स गोइंग टू कैरी द हिपैटिक वेन. राइट. तो सेंट्रल कैनाल के अंदर होता है हिपैटिक वेन. अभी रेड कलर का जो है वो मैंने आर्टरी निकाला, हिपैटिक आर्टरी, विच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द पोर्टल कैनाल. ब्लू कलर का मैंने हिपैटिक वेन निकाला है, उसके साथ मैंने निकाला लिम्फ वेसल. along with the lymph vessel, a very important part which is still remaining in this particular section to be discussed is where it's going to have a important opening somewhere near this region. तो यहाँ पे रहेगा, फिर इधर रहेगा लिम्फ वेसल के साथ, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा. ओके, फिर वापस इधर आएगा along with the lymph vessel, या फिर इधर आएगा. सो ऐसे ही छोटे छोटे कैनाल्स होते. वी कॉल दिस एज द बाइल डक्ट. क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने सॉरी 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 कॉल आया था, इसके लिए मेरा आवाज गया. टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं. ओके. So here we are going to have one more important part. Yes, one more important part that is called as the bile duct. तो ये एक और एक important structure होता है bile duct, क्योंकि hepatocyte का जो primary function होता है ना, it is to secrete the bile juice. तो ये bile juice जो hepatocyte secrete कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? So it will naturally be poured into the bile duct, and from the bile duct it comes out from the liver. तो वो पूरा bile का flow हम लोग पढ़ने वाले. ठीक है कि किस तरीके से होता है. So portal canal will have one more important part that is known as the bile duct. Right? And then we are going to have the canaliculi. Canaliculi are connected to the bile duct. तो ये bile duct के साथ connected रहेगा. Okay, so that
the bile will be poured so that the bile will be poured. कहाँ गया ये? So that the bile will be poured into the canaliculi, and from there it will be carried out from the liver. Other than that, hepatocytes are going to have multiple function. वो आगे वापस आएगा. One is the secretion of the bile juice, then comes the detoxification, then comes the release of enzymes for the metabolism. Blood protein like fibrinogen will be secreted through the hepatocytes. Heparin, which is a very important anticoagulant, which will be secreted through the by the hepatocytes. It is also known to produce vitamin D, A, and B12. It also acts as a blood reservoir क्योंकि इसके अंदर रहता है sinusoids. Okay, इसके अंदर रहता है sinusoids. जैसे if I have to draw it here, मैं पिछले स्लाइड पे निकाल रहा हूं. तो for example, suppose we have, say for example, we have this hepatic artery here like this. Okay, and इसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्टरी के साथ साइमल्टेनियसली जुड़ा हुआ है hepatic vein like this, which comes out like this. ठीक है, तो somewhere here in this region at the end we are going to have a cavity like this. So this is known as sinusoid. Okay, so it is called as the sinusoid. तो जहां पे भी blood supply अगर आप देखोगे ना, तो ये डायग्राम में अगर आप देखोगे ब्लड सप्लाई किस तरीके से है, तो somewhere at the end, somewhere here in this particular region at the angle, we are going to have this structure called as the sinusoid. क्योंकि ब्लड कैसे फ्लो होगा, तो ब्लड ऐसे आर्टरी से फ्लो होगा और वापस कैरी होगा टू द वेन, because that is how the structure is. So basically sinusoids are present along with the capillaries, यानी capillary network के साथ ये छोटे छोटे cavities रहेंगे. So we call them as the sinusoids. And sinusoids क्या करते हैं? They are known as the reservoir of the blood. उसके अंदर blood जमा रहेगा, and that will help in the further functioning. जैसे especially killing of the RBCs, which is done by the Kupffer cells. तो वो Kupffer cell का काम होता है because they are amoeboid in shape. So they will help in destroying the worn out or damaged RBCs. Worn out मतलब old जो हो गया है, 120 days old है, तो अभी उसको खत्म करना है, तो that work will be done by the Kupffer cells. So this is how we see a typical histology of the liver. ओके अभी इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी, तो मुझे आप वापस एक बार पूछ. अच्छा, अगर किसी को अनम्यूट होना है तो मुझे प्लीज आप लोगों को सिर्फ एक करना पड़ेगा कि यू नीड टू रेज योर हैंड. तो जो बच्चे रेज हैंड करेंगे उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देने वाला हूँ. ओके, सो आई कैन सी वन पर्सन हैज रेज्ड द हैंड. वेरी गुड. चलो, और किसी को हाथ अनम्यूट करना है तो अननेसेसरी लेकिन माइक चालू मत करो, हाँ प्लीज. यस, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट. ओके ओके, एनीवन हु वुड लाइक टू अनम्यूट, मैं आप लोगों को राइट दे रहा हूँ. ठीक है, चलो गुड. और कोई है? नीरज, आप अपना हाथ नीचे ले लो बेटा. ओके, जो लोग अनम्यूट हो चुके हैं वो अपना हाथ नीचे ले ले और म्यूट कर दे. ऋतुजा म्यूट करो बेटा. हो गया. और कौन है? अरे बाप रे, अरे क्या है, सबके सब कितना गोंधड़ हो जाएगा, सबके सब अनम्यूट होने लगे तो मस्ती की पाठशाला हो जाएगी. ओए, अद्वैत ठाकुर को मैं नहीं करने वाला हूँ. हाँ? नियति, हाथ नीचे करो. सब लोग हाथ नीचे करो पहले, जिनका हो चुका है. सर राइट के मारा, क्या है ये? अमन, बस. हाँ, अभी सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं. पूरा बैच, इतना बड़ा बैच है, सब सबके सब मजा सर. चलो 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 चलो, मिस्टर मार्स.
ओए राहुल, आता झालं, हाँ, इट इनफ इनफ, बहुत सारे लोगों को इतना सारा सबको नहीं करेगा मैं। चलो अभी जब कभी भी आप लोगों को कुछ भी बात करनी रहेगी, और एक आगे मिस्टर ईशान, ईशान अवस्थी, आप लोगों में से किसी को भी अगर अभी बात करना रहेगा, अरे बहुत स्टूडेंट है, केशव छोड़ना, व्हाई व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? लीवर का हिस्टोलॉजी पढ़ो। सफोरा, यू हैव अ डाउट कि सफोरा को मुझे करना है अनम्यूट, आता बस, हाँ लास्ट, इनफ, सफोरा के बाद नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीवन अनम्यूट। ओके, ये देखो सर किसी ने तो भी माइक चालू करके पान खाना चालू किया। सफोरा बंद करो, सर माइक बंद करो बेटा। गुड। अच्छा, यू वांट टू से समथिंग, बोलो, यस सर, डाउट था। बोल। सर यू सेड दैट कि जो लिवर है उसके एंटीरियर, like it has a लो, regenerative property. Yes. So यस, the posterior lobe doesn't it have it? posterior lobe will not have this regenerative capacity. The special And sir, cells which are, huh? but hepatocytes तो like पूरे overall liver में present है ना, तो sir if Yes, they get damaged yes, then what will happen in correct. the So posterior lobe? basically, yeah, basically regeneration capacity is basically by the specialized cells. I'm writing the name here. Those are called as the totipotent cells. Totipotent cells. And those cells are present only in the anterior lobe. Okay. Okay sir. Yes. Ananya is saying आपने तो मेरे से बात कर ली सर कॉल पे। Stem cells, correct? Like stem cells only. ओके, चलो गुड। अभी जिस किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, सफरा लोअर योर हैंड नाउ। जो जो कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है, यू हैव टू रेज योर हैंड फर्स्ट एंड देन आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, चलो गुड। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी, इश्यूज रहेंगे तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। नो सीट, व्हाट नो सीट? ओके, चलो गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। अच्छा, इसमें ना लिवर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये लिवर है बहुत बड़ा ग्लैंड, तो उसके और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को पढ़नी है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1.5 kg इन वेट, नोन टू प्रोड्यूस बाइल। ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है कि बाइल प्रोड्यूस तो करता है, थोड़ा ध्यान दो अभी। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द बाइल, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेंट ऑफ द बाइल जूस? बाइल जूस के अंदर क्या होता है? सो दिस बाइल जूस और द बाइल, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, हेलो, नो, Yes sir, your voice is breaking. बहुत सारे लोग नो बोल रहे हैं। सानिका क्लियर बोल रही है, अमन भी क्लियर बोल रहा है। थोड़ा नेट का इश्यू रहेगा Now मेरे ख्याल clear से, बिकॉज ऑफ, sir. नाउ क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम, धन्यवाद। नहीं सर, सही है सर, तो सही है रे। वॉइस पूछो रहा हूं मैं, वॉइस सर तो एकदम सही है। इशिता, वॉइस कैसी है मेरी? ओके, चलो। बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल जूस में क्या होता है, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, बाइल जूस कंटेंट्स, कंटेंट ऑफ द बाइल जूस ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी वाटर, ये तो सबसे पहले रहेगा। अदर देन दैट इट्स गोइंग टू हैव द कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज नथिंग बट द फैट, but most important which the bile juice will have is the bile salts and bile pigments. Now let us try and understand what these bile salts and bile pigments are. ये क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। Now bile pigments are two, one is known as bilirubin and the other one is known as biliverdin. Now remember, if you remember, we were talking about Kupffer cells, and liver is known to destroy the RBCs. Now whenever destruction of the RBC takes place, okay, whenever destruction of the RBC takes place, that time the byproduct which is released here is the bilirubin and biliverdin. So destruction of RBCs will lead to the release of this
बाय का स्पेलिंग क्या आएगा? बाय ना, BI, बाय प्रोडक्ट की VOI Y. चलो, byproduct. So a byproduct is formed here, and that byproduct is called as the bilirubin and biliverdin. Now remember, bilirubin, you and both of course will be released in the blood. ये दोनों भी blood में जाएगा, but majorly biliverdin is released through the alimentary canal. Okay, so biliverdin is released majorly through the alimentary canal in the form of through the feces. ओके, तो वो जो टिपिकल फीसेस को जो कलर आता है, दैट इज ब्राउनिश और येलोइश और ब्राउनिश कलर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज बिलीवर्डिन. एंड बिलीरुबिन विल बी रिलीज इन द ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड इट विल बी रिलीज थ्रू द यूरिन. तो ये यूरिन से रिलीज होते रहेगा. बट as I said, bile pigments are basically the products of RBC destruction, which is a part of the bile juice. तो उसमें से bilirubin will be absorbed in the blood, और उसके बाद बिलीवर्डिन जो रहेगा वो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में. लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में इट वोंट हेल्प इन डाइजेशन, बट इट विल हेल्प इन गिविंग कलर टू द फीसेस. ओके, so that is how it will be seen. Yeah, slightly greenish in color. Okay, and bilirubin is yellowish in color, and that is why जब कभी भी जॉन्डिस होता है तो हम लोग बिलीरुबिन लेवल चेक करते हैं. आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा कि जॉन्डिस होता है. अमन को कुछ तो भी नहीं समझा. अच्छा अमन सुनो, अभी मुझे मैं ये बात कर रहा हूं कि बाइल के अंदर क्या होता है. व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द बाइल? ओके, बाइल के अंदर होता है ये दो पिगमेंट्स. कौन से दो पिगमेंट्स होते हैं? वन इज बिलीरुबिन. ओके, अनदर वन इज बिलीवर्डिन. राइट, यहां तक ठीक है अमन? अमन, yes, good. उसमें से as I said, bilirubin majorly will be absorbed in the blood. Okay, ये चला जाएगा ब्लड के अंदर, but biliverdin, which is a part of the bile juice, will be released in the intestine. बराबर है, क्योंकि बाइल जूस किधर रिलीज होता है? बाइल जूस रिलीज होता है इंटेस्टाइन में. तो उसके अंदर क्या रहेगा? बिलीवर्डिन. तो ये बिलीवर्डिन क्या करता है? तो ये बिलीवर्डिन कुछ नहीं करता है. अच्छा, ये फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं लिवर के अंदर, विच इज डन बाय द पुफर सेल्स, दैट टाइम these two products are formed. So release of bilirubin or production of bilirubin and biliverdin in the bile juice is basically a result of the RBC destruction. तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है ये हिपैटिक वेन के अंदर रहते हैं, वहां से वो चले जाते हैं लिवर के अंदर ही बाइल जूस. So they will get diffused into the bile juice, and from there they will be released out. So basically these are like the waste products. ठीक है, these are like the waste products. अच्छा, why bilirubin is released in the blood? Now bilirubin part will be released in the blood, part will be in the intestine. Now why it is released in the blood? So basically this is one chemical substance which can be diffused into the blood. वो blood में diffuse हो सकता है और continuous destruction RBC का चालू रहता है. So it is likely that it might affect the intestinal role. तो इंटेस्टाइन में अगर ये लार्ज क्वांटिटीज में रिलीज होते रहा तो इट माइट अफेक्ट द इंटेस्टिनल फंक्शन. इसके लिए पार्ट विल बी रिलीज्ड इन द ब्लड, पार्ट विल बी रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन, सो दैट वन विल बी रिलीज्ड थ्रू द यूरिन, वन विल बी रिलीज्ड थ्रू द फीसेस. करेक्ट. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज व्हाई लीवर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म का पार्ट भी बोलते हैं. ओके, क्योंकि लीवर का काम ही होता है कि सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना. लीवर का और एक फंक्शन है, मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ. फीसेस मतलब पॉटी, शीशी is feces. Okay, ठीक है. चलो नेक्स्ट, यहां तक आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. यस और नो? शेमड़े लोग बोलो जल्दी, हाँ या ना? यस. ओके, गुड. चलो आगे ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस. तो अभी बाइल जूस का काम क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस? जिनको अनम्यूट किया है वो बात भी कर सकते हैं.
function of bile juice. Emulsification. Huh? Emulsification. Emulsification. Very good. Emulsification of the fat is the function of the bile juice. हाँ, सफोरा इज आस्किंग अगर दोनों का लेवल ज्यादा हो गया तो मैं अभी ये स्लाइड खत्म होने जाने दो, उसके बाद सफोरा इमीडिएटली मैं बोलता हूँ आपको. ओके, अच्छा, बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन, मीनिंग देयर शुड बी समवन हु विल डू दिस इमल्सिफिकेशन. इट इज बेसिक इन नेचर. बाइल जूस इज बेसिक इन नेचर, नियति. नाउ इट इज डन through the important chemical substance present within the bile juice called as the bile salts. There are two types of bile salts, alkaline medium. ठीक है दिव्या, that is alkaline or basic. So bile salts बनते हैं दो, कौन कौन से? Sodium taurocolate and sodium glycocolate, and these are responsible for the emulsification. तो जो emulsification होना है, it is because of the bile salts. Correct? So this is the basic information on what the bile juice contains. ठीक है? कोलेस्ट्रॉल रहेगा, बट कोलेस्ट्रॉल मेजरली इज रिलीज्ड आउट, क्योंकि अगेन इट्स लाइक ऑलमोस्ट एक्सेस में रहता है, तो इट विल बी लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट, सो इट विल बी रिलीज्ड आउट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल से वो बाहर निकलते रहेंगे. इमल्सिफिकेशन का अमल मतलब आता है कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू अ स्मॉल वन. ठीक है, emulsification meaning conversion of large fat globules into a small one, so that is called as the emulsification. Now this is done with the help of bile salts, so that is the function of the bile salts. Okay, तो ये तीन important functions हो गए. One is of course the product called as bile pigment, another one is known as the bile salts. So this is how the content of the bile will be seen. I hope everyone has done and written this. No, cholesterol directly will not perform any function. ठीक है, in the bile juice. लेकिन अगर एक्सेस में होता है ना, तो लीवर का काम ही वो है ना, कि कोई भी अगर चीज एक्सेस में होती है तो लीवर अपने आप को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर उसको स्टोर कर देता है, या फिर उसको किसी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है. ठीक है, सो दैट इज द वर्क डन बाय द लीवर. चलो, आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. आई विल मूव अहेड नाउ. अच्छा, नाउ दिस इज द बाइल फ्लो. बाइल कैसे फ्लो होता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेपेटोसाइट्स. सो ऑफ कोर्स लीवर, व्हिच इज emulsification area, is basically breakdown of large fat globules into a small one. मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था. नो नो, डोंट ड्रॉ दिस. लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था. इट इज breakdown of large fat globules into a small one. This is your last slide, Suchi. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर बहुत ज्यादा लिखना बाकी है तो. डन. सुची, ओके. दिस इज द फ्लो ऑफ बाइल. आप क्या करो ना, चार्ट लिखने से अच्छा है, या ओके, चार्ट लिखने से अच्छा है यू स्टार्ट राइटिंग डाउन द फ्लो चार्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, लीवर, inside the liver it's going to have hepatocytes. Okay, so from here hepatocytes will produce the bile juice that will be released into the, जैसे दो साइड होते हैं ना, लेफ्ट लोब, राइट लोब, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, तो दोनों लोब से ये कलेक्ट होता है इनटू द हेपेटिक डक्ट. सो वी हैव द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, that is the type of bile duct in the left side of the liver, and from here we are going to have right hepatic duct. HAE चाहिए था ना, PATIS, hepatic duct. ओके, फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करो. ओके, फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करो ना. यहां से कहां जाएगा ये बाइल जूस? तो बाइल जूस यहां से कलेक्ट हो जाएगा इनटू द कॉमन डक्ट. कॉमन डक्ट मतलब क्या? लेफ्ट और राइट दोनों भी ज्वाइन हो गए, इधर ज्वाइन हो गए तो इन्होंने बनाया कॉमन डक्ट. कॉमन डक्ट से this bile will not be directly released in the intestine, it will be stored in the gallbladder. तो ये चला जाएगा gallbladder के अंदर, where it will be stored in the gallbladder. From gallbladder, where it will go? From gallbladder, it will be carried through the cystic duct. It's a duct
which carries bile from the gall bladder. तो इसके लिए उसको नाम दिया है cystic duct. Cystic duct will continue to form another duct that is known as the common duct. Okay, तो ये बनाएगा common duct, और common duct will join to the pancreatic duct. ये pancreatic duct को join करेगा, और join करने के बाद ये बनाएगा, join करने के बाद ये बनाएगा hepatopancreatic duct. Okay, and this hepatopancreatic duct now opens into the duodenum. ये open हो जाएगा duodenum के अंदर, and this opening will be guarded by sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi बोल सकते हो, sphincter of Oddi बोल सकते हो, लेकिन Oddi is what generally is pronounced, so it is known as sphincter of Oddi. करेक्ट. तो ये पूरा ऐसा फ्लो आता है हमारा बाइल जूस का. तो बाइल जूस पहले किधर सिक्रेट होता है? ये सिक्रेट होता है लीवर के अंदर, फिर लेफ्ट साइड से जाएगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, राइट साइड से जाएगा राइट हेपेटिक डक्ट में, और ये दोनों भी ज्वाइन होके बना देंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, विच इज द फोर्थ वन. होगा पूर्वेश, मैंने बताया आपको, मेरा वीडियो जल्दी अपलोड होंगे, जैसे अपलोड होंगे मैं आपको बोल दूंगा विद इन अ डे और टू. दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट रहता है, सो इट एंटर्स हियर इन द गॉल ब्लैडर, व्हिच इज द फिफ्थ वन. गॉल ब्लैडर से जब बाइल जूस निकलता है तो इट विल बी कैरिड थ्रू द सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट विल जॉइन टू फॉर्म द कॉमन डक्ट. Common duct is going to join to the duct which is present in the pancreas called as pancreatic duct. दोनों join होते हैं तो बना देते हैं common hepatopancreatic duct, which then opens into the sphincter, which then opens into the duodenum. तो ये open हो जाएगा duodenum के अंदर. ठीक है, ऐसा रहता है हमारा बाइल जूस और बाइल जूस का ये पूरा फ्लो. हिपैटोसाइट्स के बाद बेसिकली वो बाइल डक्ट याद है तुम लोगों को, जो हम लोगों ने पोर्टल कैनाल में निकाला था अभी, है ना? आर्टरी रहता है, वेन रहता है, लिम्फ रहता है, और उसके साथ रहता है बाइल डक्ट. तो ये सारे बाइल डक्ट जो रहते हैं ना, वो ज्वाइन होके बना देते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट. करेक्ट. तो वो सब जमा होके एक बड़ा सा डक्ट बन जाता है लीवर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एंड राइट. तो दोनों ज्वाइन होके बना देंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट. ठीक है, समझा श्रद्धा? हिपैटोसाइट्स के नीचे क्या लिखा है? किधर किधर किधर? अच्छा, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक, लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट ऐसे लिखा है. लेफ्ट इज LF, RT इज राइट. फिनिश्ड. मैंने नंबरिंग किया देखो पीपीटी में. फिनिश्ड. थर्ड किधर है सर? हाँ, थर्ड किधर है? थर्ड नंबर. ये इधर तक गायब हो गई. सॉरी, यहाँ पे ना पता नहीं क्या हो रहा है. ये देख, दिखा? अच्छा. somebody अमन इज आस्किंग कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बाइल जूस का काम क्या है. बाइल जूस का एक ही काम होता है बेटा, इमल्सिफिकेशन, दैट इज टू कन्वर्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल वन. क्योंकि फैट का डाइजेशन होना है ना इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसके लिए जो फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट हम लोग खाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल, so that will be converted into a small one with the help of bile juice. प्लस जो एसिडिक फूड होता है स्टमक के अंदर, उसको अल्कलाइन बनाने में बाइल काम में आता है. इतना सिर्फ फिलहाल याद रखा. ठीक है, ये तो समझा? ठीक है सर, व्हाट टाइप ऑफ एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड? हाँ, बोलता हूँ मैं सब. यस, डक्ट्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ द थिन. अच्छा, ये वाले जो डक्ट्स है ना, ये मसल्स से, या यानी वेरी थिन मसल्स, बट इट विल बी मेजरली इनर लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, दैट्स कॉल्ड एज एंडोथेलियम. ओके, तो ये डक्ट का जो मेजर लाइनिंग होता है, दैट इज नोन एज एंडोथेलियम.
तो इससे ये बनता है। ठीक है, चलो हो गया। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस। शैल वी मूव अहेड? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे और पढ़ाना है लीवर के बारे में। हाँ, तो लीवर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यू अच्छा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का लेवल अगर ज्यादा होता है ना बेटा, तो जैसे बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है तो उसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, इफ यू रिमेम्बर। या तो इसमें लीवर फंक्शन अफेक्ट हो गया तो रिलीज ऑफ बिलीरुबिन विल बी मोर इन द ब्लड, तो उसको वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। इट्स अ साइन ऑफ हेपेटाइटिस। ओके, और बिलीवर्डिन उसके साथ ही बढ़ेगा तो नेचुरली इट्स गोइंग टू गिव डिफरेंट डार्क कलर्ड स्टूल्स आना, फिर पेट में पेन होना, ये सब तकलीफें होना चालू हो जाते हैं। यस, बॉडी का स्किन येलो हो जाता है, नेल्स येलो हो जाते हैं, आई जो रहता है दैट इज कंजंक्टिवा, सो दैट स्टार्ट्स बिकमिंग येलो। ओके, येलो इज डिस्कलरेशन बोलते हैं हम लोग उसको। ओके, चलो नाउ, अच्छा अभी अगर आप ये देखते हो ना, तो यहाँ पे डायग्राम में देखो पैंक्रियास भी है और लीवर का ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, बराबर है। इट इज गोइंग टू जॉइन, ये दोनों जॉइन होंगे। ऐसा अनन्या ऐसा बोल नहीं सकते। अनन्या इज आस्किंग कि सर डेंगू और जॉन्डिस साथ हो सकता है क्या? सो इट इज नॉट नेसेसरी कि साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जनरली रेयर है, नॉट सो कॉमनली सीन, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन, क्योंकि दोनों का कॉज अलग हो सकता है। जैसे डेंगू इज कॉज्ड बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जॉन्डिस इज बेसिकली अ साइन, तो वो किसकी वजह से, वो थोड़ा हम लोगों को देखना पड़ेगा, विच इज लाइक हेपेटाइटिस। हाँ उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कॉज इज डिफरेंट, सो इट इज लाइकली कि दोनों साथ में हो, दोनों के साइंस एंड सिम्टम्स अलग है अनंत में, राइट? सो यू कैन नॉट से कि हो ही नहीं सकता है, बट यस समटाइम्स इन सम कंडीशंस इट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, सो डोंट वरी, अभी ठीक हो ना आप, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत ले। चलो ना, अब अगर आप देखते हो ना, तो कॉमन डक्ट ये वाला जो है ना, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स है। ये बाद में मैं पैंक्रियास के टाइम पे पूछता हूँ। हाँ, इतना डेडली कॉम्बिनेशन अब तक नहीं देखा, इट्स ओके। सो यहाँ पे ना इट्स गोइंग टू फॉर्म दिस कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, राइट? यहाँ पे बन गया हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये छोटा वाला इधर। एंड दिस हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट अगर आप बेस पे देखते हो ना, इसके बेस पे अगर आप देखते हो, तो समवेयर हियर, एक मिनट, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, जस्ट अ सेकंड। या इसका अगर आप बेस देखते हो ना, तो वहां पे आपको एक छोटा सा स्वेलिंग नजर आएगा। ठीक है, ग्रीन कलर के पार्ट में आपको यहाँ पे स्वेलिंग नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वटार। ओके, इट इज नोन एज एम्प्यूला। एम्प्यूला का मीनिंग आता है स्वेलिंग, एंड दिस एम्प्यूला ऑफ वटार विल ओपन इनटू द डिओडिनम। तो ये डिओडिनम में ओपन हो जाता है, एंड व्हेन इट ओपन्स इनटू द डिओडिनम, इट ओपन्स विद अ स्फिंक्टर मसल कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो इफ आई हैव टू ड्रॉ हियर लाइक दिस, ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट है। ओके, यहां से आ गया पैंक्रियाटिक डक्ट, यहां से आया, एक मिनट बेटा, देख बोलता हूं मैं, यहां से आया पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों ज्वाइन होके बन गया एक कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट को आ गया बड़ा सा इधर स्वेलिंग, और ये स्वेलिंग सीधा ओपन हो गया डिओडिनम के अंदर, लाइक दिस। Okay, so this ampulla or this swelling which is formed here is known as ampulla of Vatar. So ये जैसे you can say this is the pancreas like this, correct? ये ऐसा pancreas है, ऊपर से ये bile duct आ रहा है, और यहाँ पे ये duodenum है जो मैंने निकाला है। अच्छा, यहाँ पे ना duodenum का ये जो ampulla of Vatar है which opens into the duodenum will have a sphincter muscle at the opening. तो यहाँ पे opening पे sphincter muscle होता है, and this sphincter muscle will make sure that the release of bile juice and pancreatic juice will take place. तो दोनों juice एक साथ mix हो जाते हैं। ठीक है, so the sphincter of body which is also known as hepatopancreatic sphincter. So it's like a muscular valve, जैसा हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना, स्टमक के अंदर कार्डियक एंड, पाइलोरिक एंड, तो वहां पे भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। एक मिनट दिखाता हूं मैं संजीवनी, वेट।
तो वहां पे भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, तो वैसा ये वाला स्फिंक्टर मसल होता है. सो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस थ्रू द एम्पुला ऑफ वटा. ओके, तो बराबर. अच्छा, ये कब रिलीज होता है? दिस विल बी रिलीज ओनली एट द टाइम when the food enters into the duodenum. अगर खाना डिओडिनम में नहीं आएगा तो this won't be released, तो ये रिलीज होता नहीं है. ठीक है, ठीक है यहां तक. हाँ, संजीवनी wants to see the last slide. मैं लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ वापस एक बार, उसके बाद वापस ये स्लाइड दिखाता हूँ. ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड संजीवनी. यस केशव, आ गया लास्ट स्लाइड भी बेटा. नो, एम्प्यूला कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डेली वर्ड श्रद्धा. एम्प्यूला इन लेग्स ऐसा नहीं होता ना. एम्प्यूला इन लेग्स का मतलब क्या आएगा श्रद्धा? कैन यू टेल मी? पूर्वे शायद आई नीड टू फाइंड आउट कि वटार किसका नाम है. नो, स्वेलिंग, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू श्रद्धा. अगर आप स्वेलिंग ऑफ लेग्स बोल रहे हो ना, तो दैट इज नोन एज इडिमा. ओके, swelling of the legs, swelling on in any part of the body is called as the edema. यहाँ पे एम्प्यूला, एम्प्यूला मतलब ऐसा swollen region, तो कैविटी बनता है ना, अंदर ऐसे कैविटी बन गया. सो दिस इज एम्प्यूला. मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है तो, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द एम्प्यूला, क्योंकि वहां पे कैविटी बन गया. सो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स, राइट. तो फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जाता है तो काफी सारा, क्योंकि ये ट्यूब का जो डायमीटर वो छोटा है, एम्प्यूला का डायमीटर बड़ा है, राइट. तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाएगा एम्पुला में और वो सडनली रिलीज हो जाएगा. सो एट ए टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन बी रिलीज्ड. इट्स ओके, नहीं दिख रहा है तो इट्स फाइन. मैंने वीडियो चालू किया है, कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा. मोबाइल पे शायद नहीं दिखता है, आई डोंट नो. सो दिस इज योर, ओके चलो, दिस इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, also called as hepatopancreatic sphincter, which is a muscular valve which controls the flow of digestive juices, right? So that it can be released at the time when the food enters into the duodenum. Yes, duodenum is basically not the way for bile juice to the stomach. Stomach में bile juice नहीं जाएगा बेटा. Duodenum is a continuation of the stomach. Duodenum is a part of the small intestine. Okay, तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है विद द डिओडिनम, लेकिन कनेक्टेड किसको रहेगा? स्टमक को. तो ये जूस स्टमक में नहीं जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है. एम्प्यूला इज लाइक बेटा अनन्या, एम्प्यूला जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ट्यूब निकाला, ओके, और ये ट्यूब को यहाँ पे है एम्प्यूला लाइक दिस. तो होता क्या है, फ्लूइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड इधर कलेक्ट हो जाएगा ना क्वांटिटी में, so that whenever required large amount of fluid can be released at a time. बहुत सारा फ्लूइड यहाँ पे रिलीज हम लोग कर सकते हैं. so that is how the function of the ampulla will be. okay, good. yes Rutuja, you want to say something? सर बाइल जूस के द्वारा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूस चला जाएगा. हाँ, बाइल जूस जाएगा, उसके साथ पैंक्रेटिक जूस, यानी दोनों जूस मिक्स हो जाते हैं. करेक्ट. ये देखो ना, यहाँ पे मैंने डायग्राम में निकाला है. इफ आई हैव टू, कैन यू सी दिस? ये डायग्राम दिख रहा है आपको? तो यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, इधर से पैंक्रेटिक जूस आ रहा है, दोनों मिक्स हो गए इधर और मिक्स होके इधर चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन में. करेक्ट, समझे आपको अभी? हाँ. यस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? अनन्या को मैंने अनम्यूट नहीं किया शायद, एक मिनट. हाँ बोलो अनन्या. सर मतलब बेसिकली सिर्फ स्टोरेज के लिए एम्पुला वर्क करेगा ना, कलेक्शन, मतलब ये बाकी कोई कुछ काम नहीं उसका. नहीं, ताकि पीछे जो ट्यूब्स है ना उसके ऊपर प्रेशर ना आए. ओके. हाँ, नहीं तो वो ट्यूब्स फट जाएंगे ना अगर उनके ऊपर प्रेशर आया तो, इसके लिए वो एम्पुला रहता है. हाँ. ओके चल आगे. शैल वी? यस और नो? ओके चल डन. नाउ दीज आर द फंक्शंस. ये सब अच्छा. लीवर को जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया था कि just like any other organ in the body, liver will also have a covering. So that covering is of a Gleason's capsule.
ठीक है। सो ये बेसिकली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कैप्सूल है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कैप्सूल है। सो इट इज नोन एज, यस थैंक यू अमन, इट इज नोन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल which covers the entire liver. ओके तो पूरे लीवर को ये कवर कर देता है बाहर से। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। फंक्शंस ये ऑलरेडी हो चुका है, मैंने आपको ये समझाया है सब। ओके ये मैंने डायग्राम ही निकाला था, इसके लिए मैंने यहाँ से लिया नहीं। या आई नो दिस इज ऑल्सो गुड। एनीवे फंक्शंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस बाइल, जो आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इट प्रोड्यूसेस बाइल। Second, it causes emulsification of fats, that is conversion of large fat globules into a small one. Okay, केशव को स्क्रीनशॉट चाहिए, ले ले बाबा। हो गया? हाँ चल, तो यहाँ पे अभी सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ द बाइल, देन बाइल कॉजेस इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल। उसके बाद देन वी हैव, that is as I said, no, to convert large fat globules into a small one. So bigger fat droplets होते हैं ना, तो उनको छोटों में कन्वर्ट करना, जैसे ये बड़ा वाला है तो उसको छोटे में कन्वर्ट करने का काम करेगा बाइल जूस, so that's called as emulsification. Then next important, it stores the glycogen, which is basically the storage function of the liver. So glucose which is in excess in the blood, okay, can you hear me? हाँ, so ये काम रहेगा। प्लस इट सिंथेसाइजेस विटामिन ए, डी, के एंड B12, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन इट इज हेमोपोएटिक, दैट इज प्रोड्यूसेस आरबीसीज इन द फीटस, ये भी मैंने आपको बताया था कि फीटल एज में इट इज नोन टू प्रोड्यूस आरबीसी, लेकिन एडल्टहुड में इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द आरबीसीज, ठीक है। एंड कुफर सेल्स आर नोन टू डाइजेस्ट द आरबीसीज। इट आल्सो फॉर्म्स अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अभी ये प्रोडक्ट्स कहां से बनेंगे? सो दीज प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड बाय, these products will be formed by the process known as deamination, that is destruction of excess amino acids. Correct Niyati? Perfect. So it is called as deamination. तो जो भी हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं, they will be destroyed, and when they are destroyed it's going to produce ammonia, urea and uric acid. अच्छा, अमोनिया our body will not be able to release because it is highly toxic. ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसके लिए हमारा बॉडी अमोनिया रिलीज नहीं करता है। आवर बॉडी विल कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू यूरिया। अच्छा, अनन्या इज आस्किंग कि व्हाई डज इट डिस्ट्रॉयज आरबीसी? आरबीसी विल हैव इट्स ओन लाइफ स्पैन, इट्स अ टाइप ऑफ सेल, it will have its own lifespan, that is 120 days, so it needs to be destroyed. And the amount of RBCs, the number of RBCs in the blood is in very large quantity, correct? तो सबसे ज्यादा होता है, तो इसके लिए इनका डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, so that new RBCs which are joining the blood vessels can move through the blood flow. ठीक है? Wait श्रद्धा, उसी की तरफ आ रहा हूं मैं, wait, I'm going to come to that. Conversion of excess amino acids into called as, yes, perfect. Conversion of conversion nahi, it is breakdown of excess amino acids into urea, uric acid and ammonia. That's called as deamination. Perfect. Naturally मर रहा है ना, this is a natural mechanism of killing ना. See, this is the natural way of destruction of the RBCs. समझ में आ रहा है ना? हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि abnormal है, लेकिन ऐसा नहीं है। RBCs will naturally, when they grow old, they will end, of course, are flowing through the liver, but the RBCs which are old will naturally be destroyed. This is a natural mechanism of destruction or breakdown of RBCs. हर एक सेल हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन ऐसे होता है, ठीक है। NH3, स्नेहा का क्या है NH3 पता नहीं। Anyway, next one is it forms the blood protein, and that blood protein is known as prothrombin and fibrinogen. Now these are all what? These are basically the clotting factors, ठीक है, which are essential for the clotting mechanism, जो clotting में काम में आते हैं, clotting of blood, तो इसमें काम है।
ओके नहीं, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन से नहीं होता है बेटा। सोहम यार आस्किंग कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसका गांठ बनता है क्या, तो ऐसा नहीं है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होते ही रहेगा, उससे रिलेटेड बीमारियां अलग है। ओके, आरबीसी का कभी गांठ नहीं बनेगा, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। लीवर डैमेज हो गया ना तो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि आरबीसी प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। Yes, spleen will also help in destruction. ना, so it is. मैंने बताया ना आदित्य last time भी, spleen is called as the slaughterhouse and liver is called as the graveyard of RBCs. ठीक है, one is the slaughterhouse, the other one is graveyard of RBC. Yeah, perfect. So, okay, तो ये हो गया हमारे सारे functions. ठीक है, अच्छा अभी ना एक बहुत ही important part है जो हम लोगों को पढ़ना है. I'll just add one slide here. एक्चुअली वो इसमें नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं आप लोगों को ताकि आगे चल के आपको काम में आएगा. लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. लीवर का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट बेसिकली हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आता है. अभी आप इमेजिन करो कि वी हैव अ लीवर हियर. यहाँ पे मैंने एक लीवर का डायग्राम ऐसे निकाला है, तो ये लीवर है, ऐसा इमेजिन करो. ओके, अभी एंड देन इमेजिन दैट वी हैव यस, मैंने गन की तरह निकाला. इमेजिन दैट वी हैव दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे इमेजिन करो ना. थोड़ा ध्यान दो अभी सब लोग इधर. ओके, सो बेसिकली इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? इंटेस्टाइन विल हैव द फंक्शन ऑफ डाइजेशन of the food. So digestion of the food will be completed. Along with the digestion, it also helps in absorption of the food. यानी simple substances को absorb करने का ये काम करेगा. Okay, so it will help in absorption of the food substances. So that is the work done by the small intestine. अभी होता क्या है ना, body has a natural tendency कि जहां पे artery will enter in, जो flow होता है ना blood का, सपोज अगर ये आर्टरी है तो ये आर्टरी आता है फ्रॉम अ लार्जेस्ट आर्टरी नोन एज एओर्टा. आर्टरी अंदर जाएगा ऑर्गन के, डिवाइड होके आर्टेरियल बनाएगा, फिर बनाएगा कैपिलरी नेटवर्क. कैपिलरी नेटवर्क रीजन होके बनाएगा वेन्यूल, और वेन्यूल रीजन होके बनाएगा एक वेन. यहाँ पे बन जाएगा वेन, एंड दिस वेन इज बेसिकली नोन टू जॉइन टू वेना कावा. तो इसको ज्वाइन होता है. लेकिन ये जो इंटेस्टिनल वेन है ना, ये वेना कावा को ज्वाइन नहीं होता है, ये एंटर हो जाता है लीवर के अंदर. ये सीधा चला जाता है लीवर के अंदर. करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग टू द वेना कावा, इंटेस्टिनल वेन वेना कावा को ज्वाइन नहीं होता है, वो किसको ज्वाइन हो रहा है? डायरेक्ट लीवर को. क्यों? क्योंकि ये वेन के अंदर क्या है? ये वेन के अंदर है पूरा एब्जॉर्ब फूड. जितना भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया वो सारा वेन के अंदर है, तो वो सबसे पहले चला जाएगा लीवर के अंदर. फिर लीवर विल डिसाइड कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसको हम लोगों को स्टोर करना है और किसको हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है. So that will be done by the liver as per the body's requirement. That is why this vein enters in the liver. This vein will divide to form capillaries. These capillaries will rejoin to form the venule. Venule will come out as a vein. तो ये वाला जो वेन है, इसको हमने नाम दिया है हिपैटिक वेन, और ये हिपैटिक वेन फिर ज्वाइन हो जाता है टू द वेना कावा. तो क्वेश्चन ये आता है कि ये वेन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रैक्टिकली दिस वेन शुड बी कॉल्ड एज इंटेस्टिनल वेन. लेकिन ये वेना कावा को ज्वाइन हो रहा है क्या? नहीं. ये किधर जा रहा है? लिवर के अंदर. सो इट इज फॉर्मिंग अ पोर्टल कैनाल और पोर्टल सिस्टम, यानी यहाँ पे पोर्टिंग हो रहा है. तो ये वेन को हमने नाम दिया है हिपैटिक पोर्टल वेन.
Okay, so this vein is known as the hepatic portal vein, and this hepatic portal vein is always rich in nutrients, क्योंकि सीधा इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर चले गए। समझ में आ रहा है? A very important connection between the intestine and liver. Vena cava is the largest vein. आप लोगों ने हार्ट का डायग्राम पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर. So it is considered as the largest vein which joins to the heart. ये हार्ट को ज्वाइन करता है. ठीक है, श्रद्धा अभी समझा आप जो पूछ रहे थे मुझे? गुड. अच्छा, अभी सोहम को ये वापस रिपीट करके चाहिए, तो सोहम मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आपको वापस एक बार याद ध्यान में दो. When the vein comes out from the intestine, it should join to the vena cava, but it doesn't join to the vena cava. Instead, it enters into the liver. Why it enters into the liver? क्योंकि liver का काम होता है distribution. So whatever food which is absorbed to the intestine will first enter in the liver. There the distribution of the food substances will take place, and from there then the vein will come out from the liver. So that vein is known as hepatic vein. Okay, तो ये vein को नाम दिया है hepatic vein. और यहाँ पे because it is not directly forming this structure between that, meaning this vein is not entering in the vena cava. So this particularly this vein here is known as hepatic portal vein because it is forming a portal system. तो ये system को नाम दिया गया है hepatic portal system. ये आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा जब आप सर्कुलेशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे तब. ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आज नहीं समझा तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? अनन्या, सर अपवर्ड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर रहेगा ना? हाँ हाँ, ऑब्वियसली. तो वेन वैसे भी अपर डायरेक्शन में कैरी करता है ना ब्लड. जैसे पैर का जो ब्लड है वेन का, वो अपर डायरेक्शन में जाता है, तो वेन को वैसे भी होते ही ये वाल्व्स एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट? हाँ सर. समझा अनन्या? हाँ, ठीक है. चलो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा नहीं बोल सकते. वेन्स आर नोन टू कैरी ब्लड इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पैर में भी वेन्स है ना, तो हार्ट की तरफ ब्लड आएगा कैसे? तो वो आएगा थ्रू द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, यस. चलो. श्रद्धा हैज रेज्ड द हैंड. श्रद्धा बोलो बेटा. हाँ सर हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के बीच में भी एक वाल्व होना चाहिए ना, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस चले जाएंगे. हिपैटिक पोर्टल वेन का हिपैटिक वेन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हिपैटिक पोर्टल वेन है ना, वो लीवर के अंदर डिवाइड होकर वापस कैपिलरी बना रहा है ना. यस सर. समझ में आ रहा है? हाँ, तो कैपिलरी रीजॉइन होकर वापस हिपैटिक वेन बन रहा है. तो ये वेन का और हिपैटिक पोर्टल वेन का कोई रिलेशन ही नहीं. ठीक है? यस सर. हाँ, मैंने ऑफ किया है. अमन वेट, सबको टेंशन आता है वीडियो ऑफ होता है. फटके मारने चाहिए तुम लोगों को. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज पैनक्रियास. थोड़ा पैनक्रियास पढ़ लेते हैं. करता हूँ अमन, में थोड़ी देर में वीडियो ऑन करता हूँ वापस, डोंट वरी. What is the location of the pancreas? So it is present in the gap between the stomach and duodenum. तो duodenum का जो ये U शेप दिख रहा है ना आपको, या फिर C शेप स्ट्रक्चर, उसके अंदर behind the stomach we have pancreas. स्टमक के पीछे की तरफ रहता है, स्टमक के आगे नहीं रहेगा. So it is present behind the stomach, transversely arranged in the body like a leaf-like structure called as pancreas. Now remember, pancreas will have both the functions. It is called as the gland of dual secretion. जैसे हमारा dual सिम वाला मोबाइल होता है, वैसा ये dual secretion वाला ग्लैंड है. मतलब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में पैनक्रेटिक जूस यानी एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगा, और ये हमारे बॉडी में सिक्रेट करेगा इवन द हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये दोनों काम करता है. सो इट इज कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज नोन टू सिक्रेट बोथ एंजाइम्स and
hormones. Okay, that is why this particular gland is also called as heterocrine gland. तो मतलब अब ये तीसरे टाइप का ग्लैंड आ गया. देखो, पहला ग्लैंड एक्सोक्राइन, दूसरा ग्लैंड एंडोक्राइन, और तीसरा कौन सा आया अभी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड. करेक्ट. तो ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो गया हमारे लिए. राइट. वहां हेटेरोक्राइन क्योंकि ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है. मतलब एंजाइम्स रिलीज करेगा तो उसके लिए सेल स्ट्रक्चर अलग रहेगा, हार्मोन रिलीज करेगा तो उनके सेल्स अलग रहेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हिस्टोलॉजी है क्या. सो इट इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड टाइप ऑफ अ ग्लैंड. अच्छा, ये फ्लो दिया है, मैं ये निकाल देता हूं कि नहीं निकालू, बाद में लिख देता हूं. चलो एक मिनट. अच्छा, अभी देखो. हाँ, ध्यान दो इधर सब लोग, भाई लोग और उनकी बहन लोग, ध्यान दो. यस, हेटेरोक्राइन है ना बेटा श्रद्धा. टेस्टिस एंड ओवरी, हेटेरोक्राइन. स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं. ओवरी विल प्रोड्यूस ओवम आल्सो एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आल्सो. ओके, चलो गुड. अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंडोक्राइन पार्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्सोक्राइन पार्ट. ओके, अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे पैंक्रियास का ये एक डक्ट है. किधर गया मेरा पेन? हाँ, पैंक्रियास का एक डक्ट है. This duct is called as the main pancreatic duct or also called as duct of Santorini. अगर आप देखते हो ना तो ये वाला, ये duct of Santorini है. Yes, yes, you need to draw this. हाँ दिव्या, सबको ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. तो ये duct of Santorini है ना, ऐसा आगे कंटिन्यू हो रहा है. राइट. Whereas if you see here, duct of Santorini is giving rise to a branch here that is called as duct of Wirsung. Okay, और ये डक्ट ऑफ विल्सन के साथ ये बाइल डक्ट ज्वाइन हो रहा है एंड इज ओपनिंग इन द एम्प्यूला ऑफ गटार. ठीक है, तो मतलब विल्सन सैंटोरिनी अलग से ओपन होता है, विल्सन ज्वाइन हो जाता है बाइल डक्ट के साथ, और बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन होके यहाँ पे एक छोटा सा डक्ट बनेगा. दिस डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन डक्ट और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. यस अनन्या, आई नो, अभी तुझे समझा होगा क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं ना, तभी आधा आधा पढ़ रहे थे. अभी पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा आपको. ओके, सो दिस इज एम्पुला वेटार. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव हियर मेजर पैपिला एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनर पैपिला. मतलब पैंक्रियाटिक जूस दो टाइप से ओपन होता है, दो ओपनिंग से ओपन होता है. वन इज माइनर पैपिला, क्योंकि वो सिंगल डक्ट है ना तो छोटा रहता है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा. लेकिन कॉमन डक्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट ओपन्स अलोंग विद द वाइल्ड डक्ट. करेक्ट, इसके लिए उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है. तो इट इज कॉल्ड एज द मेजर पैपिला एंड देन इट इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी एंड विल हैव द एम्पुला ऑफ वाटर. ओके, समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, both will open. Duct of Santorini, duct of Wirsung दोनों भी ओपन हो जाते हैं डिओडिनम के अंदर. ठीक है, दोनों भी डिओडिनम के अंदर ही ओपन हो जाते हैं. तो लेकिन duct of Wirsung will open along with the bile duct as a common hepatopancreatic duct. So it will have the ampulla of Vatar and then there will be sphincter of Oddi. समझा रे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, pancreatic duct, that is duct of Wirsung, will open with a sphincter of Oddi. Yes, Sanika, बोलो बेटा. Sir, so where is that ampulla of Vatar present and where is the major papilla present, or is it the same thing? Major papilla is an opening, उसके पीछे रहेगा ampulla of Vatar. Okay, कळलं? sir. हाँ, Yes. the opening is called as major papilla. ओपनिंग के पीछे रहेगा ampulla of Vatar, लेकिन वो ओपनिंग के ऊपर कौन सा मसल रहेगा? स्फिंक्टर मसल. Yes, sir. ठीक है, got it. गुड. अच्छा, पैपिला इज अ कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स. तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग के लिए यूज किया है, आउटग्रोथ के लिए भी पैपिला का यूज होता है. तो अलग अलग लोकेशन पे उसका अलग अलग नाम है. ठीक है,
टंग के जैसा नहीं है श्रद्धा, ये टंग के ऊपर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ओपनिंग। ठीक है, सो अलग जगह पे उसका अलग अलग फंक्शन रहेगा, नाम सिमिलर रहेगा। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। मैं ये पूरा इंक मेरा मिटा रहा हूँ सो दैट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपरली। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपरली। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। हाँ करता हूँ अमन में वो भी, ठीक है। अमन इज आस्किंग कि सर कैन यू प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट स्फिंक्टर एंड मेजर पेपिला एंड वेटर। इधर जगह ही नहीं है, यहाँ पे करता हूँ। सी दिस इज द डक्ट ऑफ सैंटोरिनी लाइक दिस। तो ये मैंने डक्ट ऑफ सैंटोरिनी निकाला, इसको यहां से बेंड करके मैंने डक्ट ऑफ विल्सन निकाला। Like this. Now this duct of Wilson is going to join with the bile duct. Okay, तो यहां से ऐसे bile duct के साथ ये join होगा like this. Okay, तो ये bile duct के साथ join हो गया, जो रेड कलर में मैंने निकाला है। और दोनों join होने के बाद अभी मैं ब्लैक कलर का निकालता हूं, तो इट इज नोन एज कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को यहाँ पे आएगा एम्प्यूला, एंड दिस एम्प्यूला विल ओपन लाइक दिस। तो यहाँ पे रहेगा डिओडिनम। ओके, अरे बाप रे, एक मिनट। हाँ यार पीपीटी जैसा बीच में बंद पड़ जाता है मेरा। लोग सब पागल हो गए होंगे ना, कितने फोल्डर्स कितना क्या क्या है। मेरा लैपटॉप यानी खजाना है, खजाना। आई डोंट नो, सब ड्राइंग्स निकल गए होंगे मेरे ख्याल से अभी। Do bile and pancreatic enzyme mix as the duct? Yes, yes, bile juice and pancreatic juice will mix only ना, फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि दोनों को कहाँ जाना है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन में मिक्स होना ही पड़ेगा ना इधर, क्योंकि उनको फूड को डाइजेस्ट करना है। तो बाइल जूस अपना काम करेगा और पैंक्रेटिक जूस अपना काम करेगा, सो दे बोथ विल गेट मिक्स्ड। ठीक है, ये एम्प्यूला का समझ में आया क्या? तो सपोज अगर ये डक्ट ऑफ विल्सन है, वापस निकाल रहा हूं मैं, ये डक्ट ऑफ विल्सन है, यहां से आ गया आपका बाइल डक्ट जो इसको ज्वाइन हो गया। ओके, जब ये ज्वाइन होता है तो ये बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट, और फिर एक कॉमन हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट को आएगा एक बड़ा सा स्वेलिंग, उसको नाम दिया है एम्प्यूला। फिर ये एम्प्यूला ओपन होता है डिओडिनम के अंदर, और ये डिओडिनम पे, सो दिस इज नोन एज मेजर पैपिला, और इसके ऊपर रहेगा ऐसा एक स्फिंक्टर मसल, तो उसको नाम दिया है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर। सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़े, अभी सब लोगों ने निकाल लिया। सो दिस इज मेजर पैपिला। यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ना बेटा, ये
ये आपका एम्प्यूला है, तो ये एम्प्यूला का ऐसा ओपनिंग आ गया ना डियोडिनम के अंदर, तो ये ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं मेजर पैपिला, और ये मेजर पैपिला के ऊपर ही यहाँ पे रहेगा आपका स्फिंक्टर मसल। माइनर पैपिला विल रिलीज पैनक्रेटिक जूस, दिव्या, ठीक है। ये दोनों डक्ट में से पैनक्रेटिक जूस ही रिलीज हो रहा है ना, लेकिन डक्ट ऑफ विल्सन का जो पैनक्रेटिक जूस है वो बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाएगा, और माइनर पैपिला भी पैनक्रेटिक जूस रिलीज करते रहेगा अलग से। क्वांटिटी के हिसाब से होता है ना, तो वो डिवाइड हो जाता है ताकि पैंक्रियास के ऊपर प्रेशर ना आए, क्योंकि डक्ट्स बहुत छोटे हैं, तो प्रेशर नहीं आना चाहिए करके दो अलग डक्ट्स बन जाते हैं। सर ठीक उसका है, फंक्शन सिर्फ रिलीज ऑफ एंजाइम्स ही है। yes, only release of the pancreatic juice, that's it, but it opens separately as minor papilla. Done. So this is your pancreas का एक डक्ट का रिलीज। लेकिन अभी अगर हम लोग ये टिश्यू देखते हैं, because as I said no, different types of cells are there, it has both the function exocrine as well as endocrine function। तो यहाँ पे उसका एंडोक्राइन पार्ट के सेल्स क्या होते हैं और एक्सोक्राइन पार्ट के सेल्स क्या होते हैं। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप देखते हो ना डायग्राम में दिया हुआ देखो, बंचेस में दिखता है, ठीक है, यस, ये छोटे छोटे बंच में आपको दिखेगा। तो बेसिकली पैंक्रियास का ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, सो दिस इज नोन एज, ये वाला जो है सी वाला जो लिखा हुआ है ना, दैट इज यस लाइक अ ब्रोंकाई ओनली, बट इट इज नॉट अ ब्रोंकाई। सो सी वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज योर एक्सोक्राइन पोर्शन, और ये डी वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर, ये वाला एंडोक्राइन है, ये वाला एक्सोक्राइन। सो आई राइट हियर एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। ओके, तो ये एक्सोक्राइन पोर्शन इज मेड अप ऑफ दिस बंच ऑफ सेल्स। नहीं नहीं, ये मत ड्रॉ करो आनंद। एक्सोक्राइन पोर्शन इज मेड अप ऑफ दिस बंच ऑफ सेल्स, दे आर नोन एज द एसिनाई और एसिनस। सिंगल इज एसिनाई, प्लूरल इज एसिनस। तो होता क्या है, एक छोटा सा ऐसा कैनाल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, और इसके अंदर ये छोटे से ऐसे ट्रायंगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं लाइक दिस, इन द फॉर्म ऑफ बंच ऑफ 4 और bunch of 8 like this। तो ऐसे ये triangular shaped cells होते हैं। So these are known as the acini or acinus. Single is acinus, plural is acini. Yes, like a pizza. Perfect. Like a pizza, it appears like that only. And this is known to secrete the pancreatic juice. How it will secrete the pancreatic juice? तो पिज्जा का एक पीस अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, so it appears like this. So this is your single acinus. इसका न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा। इसका ये जो ट्रायंगुलर बेस है ना, ये बेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंड दीज प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हियर दे आर नोन एज द zymogen granules। Okay, so they are called as the zymogen granules, and these zymogen granules are known to secrete the pancreatic juice। करेक्ट। और अगर आप देखते हो ना, तो ये डक्ट के साथ ओपन हो रहा है, मतलब ये सारे zymogen ग्रैन्यूल दिख रहे हैं। देखो डायग्राम में, देखो ये वाले डायग्राम में, देखो बेस में दिख रहा है आपको। तो यहाँ से zymogen ग्रैन्यूल पैंक्रेटिक जूस रिलीज कर रहे हैं, इधर से रिलीज हो रहा है, इधर से रिलीज हो रहा है, सारा जूस मिक्स होके किधर जा रहा है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। करेक्ट। तो अगर आप देखते हो ना, नीचे यहाँ पे बाजू में एक डायग्राम है, देखो डायग्राम नंबर बी वाला डायग्राम देखो, ये वाला जो बड़ा डक्ट ऑफ सैंटोरिनी है, यहाँ से जूस रिलीज हो रहा है, इधर रिलीज हो रहा है, इधर रिलीज हो रहा है, वापस इधर से रिलीज हो रहा है, इधर से रिलीज हो रहा है, ऐसे रिलीज हो रहा है, ऐसे रिलीज हो रहा है, लाइक दिस। करेक्ट। सो दैट इज द वर्क ऑफ द zymogen granules, right? But then it has the endocrine part also. So what is the function of this endocrine part? तो यहाँ पे these are all the acinar cells as you can see here, and acinar cells will basically join to this duct। तो pancreatic duct को ये join हो जाएंगे। हाँ, लंग टाइप जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। बट अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरे इसमें वी हैव दिस छोटा छोटा आइलैंड्स इन द पैंक्रियास। वी कॉल दिस एज द आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, सो दे लुक समथिंग लाइक दिस, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ये कैसे दिखता है, देखो अभी मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ यहाँ पे। सपोज वी हैव दिस पैंक्रियास हियर लाइक दिस। ओके, ये बड़ा सा पैंक्रियास मैंने निकाला है, थोड़ा जानबूझ के बड़ा निकाला है, सो दैट यू विल बी एबल टू सी। ये पैंक्रियास को यहाँ पे सपोज ये एक डक्ट है, दिस इज लाइक यू कैन से डक्ट ऑफ सैंटोरिनी है, करेक्ट, लाइक दिस।
और यहां से चेंज होके हो गया डक्ट ऑफ विल्सन। ओके, अच्छा अभी ये सारे डक्ट्स को ना, इफ यू सी हियर, वी आर, कैन यू हियर मी? Can you hear me? Yes, sir. So we have bunch of, yeah, we have bunch of acinar cells here, bunch of acinar cells here, bunch of acinar cells here, bunch of acinar cells, bunch of acinar cells, bunch of acinar cells, like this, and they all will join to these ducts. तो ये सारी ये डक्ट को इस तरीके से ज्वाइन हो गए। समझ में आ रहा है आपको ये अभी? करेक्ट? यहाँ पे भी एक निकाल देता हूँ। तो ये सब ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं इसको। ये एसिनाई क्या कर रहे हैं? ये ब्लैक कलर का एसिना क्या कर रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहे हैं। तो ये जाएगा किधर? सीधा एलिमेंट्री कैनाल में। अच्छा, इसके बीच में ना आपको ऐसे छोटे 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 पैचेस दिखेंगे जो रेड कलर के मैंने अभी निकाले हैं। व्हाट आर दीज पैचेस? दे अपीयर लाइक आइलैंड्स इन दी ओशन। ऐसे लगता है कि एक ओशन है और इसके अंदर ये छोटे छोटे आइलैंड्स है। सो दीज आर नोन एज दी islets of Langerhans। ठीक है, islets of Langerhans, like a island। और ये islets of Langerhans is basically ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, so that is the endocrine part of the। तो ये islets ये डक्ट को कनेक्टेड है क्या? नहीं, क्योंकि ये एंडोक्राइन पोर्शन है, तो ये रिलीज करेगा हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन कहाँ रिलीज होंगे? Hormones will be released in the blood, so they will be connected to the blood vessels and not to the duct of Santorini and duct of Wilson। समझा? समझा? लैंगरहैन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये ढूंढ के निकाला, इसके लिए उसको नाम दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है अल्फा सेल, दूसरा आता है बीटा सेल, तीसरा आता है डेल्टा सेल। अल्फा सेल्स विल रिलीज ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स विल रिलीज इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल्स विल रिलीज सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन एंड अमाइलिन। इंसुलिन का काम क्या रहेगा? इंसुलिन इज नोन टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकागॉन विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, सोमैटोस्टैटिन कंट्रोल्स अल्फा एंड बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा और बीटा सेल्स को कंट्रोल करने वाला ये काम करता है। ठीक है, नहीं इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके लिए उसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। लेकिन पहला जो किया ना हम लोगों ने, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, बाइल डक्ट, ये वो सब 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 उस पे आएगी। ठीक है, करेक्ट। सो दीज आर ऑल द सेल्स। तो ये हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में अलग से पढ़ने वाले, पैनक्रियास और अदर पैनक्रियाटिक पैनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन। करेक्ट? पेन अभी समझा? Yes, most of the cell. Correct. So this is how the islets will be seen. Okay, so human pancreas has around 1 million such islets of Langerhans। Imagine इत्तु सा हमारा pancreas, लेकिन उसके अंदर कितना islets है? 1 million। Adult pancreas has 1 million islets of Langerhans। ठीक है, समझ में आया सबको? Langerhans is the name of the scientist। समझा? हाँ हाँ, अमन है। अभी आवाज आ रहा है ना बिल्ली का? अभी बिल्ली का डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। ओके, द एंटायर पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो टिप पे रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज द टेल, दिस वन इज नोन एज द बॉडी, और जो बेस रहता है दैट इज कॉल्ड एज द हेड रीजन। हाँ, भूख लगी है पूर्वेश, बराबर। ठीक है, तो ये बेस जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द पैनक्रियास, बीच में रहता है बॉडी, और उसके बाद रहता है टेल। ठीक है, सो दिस इज लाइक डक्ट ऑफ विल्सन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरा। एम्पल ऑफ वाटर विल बी देयर, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी विल बी देयर, टिपिकल वही। तो वो जो एक्चुअली दिस इज नॉट अ डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन विल बी दिस वन। ठीक है, ये पूरा डक्ट ऑफ सैंटोरिनी है ये वाला। ओके, वापस वही डायग्राम है,
So pancreas will be divided into head, body and tail. So that is the division of the entire pancreas. ठीक है, समझा सबको ये? किसी को डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी, इश्यूज रहेंगे तो पूछ लो. आवर टाइम इज आल्सो डन नाउ, क्योंकि अभी हम लोगों को आगे चल के और एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड पढ़ना है, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, व्हिच इज गोइंग टू बी अनदर टफ टास्क. ओके, अभी ये ना थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएगा, सो जस्ट बेयर विथ मी. यस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? सर वो जो सारा सेल्स का और वो सब बताया, उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब वो लिखने की जरूरत है पूरा? एसिनाई के ऊपर आ सकते हैं, आइलेट्स पे नहीं आएगा. आइलेट्स पे जो आता है क्वेश्चन वो ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन वो हम लोग डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. तो सर फिर वो स्लाइड एक बार बता दें. हाँ, ये श्रद्धा. सर कैन दिस हैपन कि पैंक्रियाज वर्किंग करना स्टॉप कर दे? होता है ना बेटा, सर तो फिर क्या डायबिटीज जैसे पूरा पैंक्रियास नहीं होता है, लेकिन हाँ पॉसिबल है. उसको वो कंडीशन, कोई इन्फ्लेमेशन होता है पैंक्रियास का, उसको बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस. ओके ओके, तो ऐसा हो सकता है कि पैंक्रियास काम करना बंद करे, या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन काम करना बंद कर दे. जैसे फॉर एग्जांपल आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में से बीटा सेल्स ने काम करना बंद किया, तो इंसुलिन ही रिलीज नहीं होता, तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगा. पैंक्रियाटिक जूस अगर नहीं रिलीज हुआ, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन का तकलीफ होगा, तो उसमें प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा या फिर फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट को दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं. सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह ऐसे अलग अलग कंडीशंस आना चालू हो जाते हैं. ओके, पैंक्रियास का कैंसर यस भी सर. पॉसिबल. ठीक है, बता दिया मैंने अमन उसमें क्या होता. चलो बाय बाय, सी यू. हो गया क्या अनन्या बेटा? अनन्या, यस, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, Bye bye, sir. बाय. यस, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू, बाय बाय, सी यू. ये वाला अनन्या. यस सानिका बोलो. सानिका, सानिका ने हाथ ऊपर किया. अनन्या दिस वन. यस, बाय बच्चा लोग, सी यू, टेक केयर. अनन्या, हाँ देता हूँ, बिल्ली को दूध देता हूँ. अमन अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, मेरे बिल्ली का टेंशन मत लीजिए. यस, बाय. अनन्या तू है कि गई? अनन्या गायब हो गई मेरे ख्याल से. सर आप कहाँ से हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट से? बाप रे, मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन अलग अलग जगह पे रहता हूँ. कभी औरंगाबाद, कभी मुंबई, बीच में दुबई में भी था, घूमते रहता हूँ. ओके. बाय, चलो सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. हाँ बोल. बाय सर. बाय.